Good morning, everyone. We understood the ledger posting, right? The important thing is to understand the basics behind ledger posting. Try to understand. Suppose this is account, right? This is account which is in the T format, which is in the T format. Try to understand. Left hand side of the account is called as which side? Debit side, that everybody knows now. And the right hand side is called as credit side. So this is debit side. This is credit side. ध्यान देना. If the account is asset or liability, asset or expense account, sorry, any asset or expense account, debit is increase. Debit side will be called as increase side, increase in asset, increase in expense. And credit side of that account will be called as decrease in asset or expense. And therefore, you will get balance. So यहाँ पे आपका try to understand, if it is asset account or it is an expense account, आपको यहाँ पे मिलेगा टू opening balance. To opening balance carried down. Then there will be increase. Then there will be decrease. And then you will get closing balance by closing balance brought down. Sorry, ये carried down नहीं, ये brought down होना चाहिए और ये होना चाहिए carried down, right? Closing balance. So this is the nature of asset or expense account. Debits are increase, credits are decrease. ये हमने journal entry में भी सीखा था. When we decide whether account to be debited or credited, तब मैंने rules बोले थे. For assets and expenses, whenever there is an increase in asset or expense, we will debit the asset or expense. मतलब we will write or we will post on the debit side of that account. And whenever there is a decrease in asset or expenses, we will write on a credit or we will post on a credit side of that account. And if the account is income or liability account, try to understand. This is liability account or income account. Debit and credit. Credit side is increase. Increase in asset or increase in liability or income, and debit side is a decrease. There has to be, agar there is an opening balance, it will be opening credit balance, opening balance brought down. Then there is an increase, there is a decrease, then you will get two closing balance carried down. Like you can say like this, there is an opening balance, there are increase, there are decrease, and then you will get closing balance. Then you will get closing balance. Then you will get closing balance. Similarly, there is an opening balance to the liability or income. Then there is an increase. Then there is a decrease. And then you will get closing balance. Try to understand. This is the nature of the account. बहुत सिंपल चीज है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. लेजर या लेजर का जो लेजर एंड जर्नल इंटरलिंक्ड है और आप यहां से समझ सकते हो. कोई भी अकाउंट देखो, अगर वो असेट अकाउंट है तो डेबिट होगा. So increase in asset, like cash comes in, we debit cash account. Bank balance comes in, we debit bank account.
डेटर्स इंक्रीजेस, सेल्स होते हैं, डेटर्स होते हैं, डेटर टू सेल, डेटर इंक्रीजेस, डेबिट. सो ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं. यहां से आप एंट्री भी सीख सकते हो, जर्नल एंट्री भी सीख सकते हो. लाइक ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं. बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, कैश कम्स इन, असेट इंक्रीजेस डेबिट, लाइबिलिटी इंक्रीजेस क्रेडिट. कैश अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट. बराबर. दूसरा, स्टार्टेड बिजनेस विथ बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस असेट इंक्रीजेस डेबिट, बैंक अकाउंट के डेबिट पे, कैपिटल अकाउंट लाइबिलिटी अकाउंट इंक्रीजेस क्रेडिट. लोन टेकन, loan taken from the bank, loan taken from bank, cash comes in, asset increases debit, loan liability increases credit. इसलिए कैश को डेबिट होगा, लोन को क्रेडिट होगा. आगे, then purchase goods on credit, purchase goods on credit, purchases expenses increases debit, creditors liability increases credit, purchases account debit to creditors account credit. Then purchase goods on cash, goods purchase किए on cash, purchase expenses increases, purchase expense increases and cash asset decreases. So एक आप नेचर समझ लेना, asset and expense है. So expense increases, purchase account debit, cash decreases, asset decreases, cash account credit, purchase to cash. ध्यान देना. You sold goods on cash, you sold goods on cash, cash comes in debit, cash account debit, cash increases. कैश कौन सा अकाउंट है? असेट अकाउंट है. असेट इंक्रीज होता है तो आप उसके डेबिट पे पोस्ट करोगे, कैश के डेबिट पे पोस्ट करोगे, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट. सेल्स इनकम है, इनकम इंक्रीज हो रही है तो हम उसके क्रेडिट पे पोस्ट करेंगे, दैट इज सेल्स को क्रेडिट करेंगे. एंट्री आएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स. आपने गुड्स क्रेडिट पे सेल किए, यू सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, डेटर्स increases, debtors are assets, assets increases debit, asset increases debit, debtor account debit, sales income increases credit. Now ध्यान देना, you purchase furniture on cash, furniture asset increases debit, so furniture account debit, cash asset decreases cash credit. so entry आएगी फर्नीचर के डेबिट पे एंड कैश के क्रेडिट पे. ध्यान देना, यू परचेस फर्नीचर ऑन क्रेडिट, फर्नीचर क्रेडिट पे परचेस किया, फर्नीचर इंक्रीजेस डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स लाइबिलिटी इंक्रीजेस क्रेडिट टू क्रेडिटर्स फॉर फिक्स असेट अकाउंट क्रेडिट, फर्नीचर टू पार्टी अकाउंट क्रेडिट. ध्यान देना, अमाउंट पेड टू डेटर्स, अमाउंट पेड टू डेटर्स, cash decreases, sorry, amount paid to creditors, creditors, amount received from debtors and paid to creditors. अच्छा, amount paid to creditors, cash decreases credit, liability also decreases debit. So creditors account debit to bank, creditors account debit to bank, amount received from debtors, amount received from debtors, cash increases debit, cash increases debit, debtors decreases because to that extent now they won't be debtors, debtors decreases credit. so दो अकाउंट्स रहेंगे, कैश एंड डेटर, कैश इंक्रीज होगा उसको डेबिट किया जाएगा, डेटर्स डिक्रीज होंगे उसको क्रेडिट किया जाएगा. रेंट पेड, एक्सपेंस इंक्रीजेस, एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, कैश डिक्रीजेस, असेट अकाउंट कैश को क्रेडिट किया जाएगा. रेंट टू कैश, सैलरी पेड, सैलरी टू कैश, wages paid, wages to cash, expense increase, cash decrease, asset decrease, interest paid, interest to cash, interest to cash. Now cash withdrawn, cash deposit into bank, cash deposit into bank, bank balance increases debit, bank account debit, cash decreases credit. so entry रहेगी बैंक के डेबिट पे टू कैश, कैश के क्रेडिट पे बाय बैंक. सो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश विड्रॉन
फॉर पर्सनल यूज फ्रॉम बैंक, बैंक से पैसे निकाले, बैंक बैलेंस डिक्रीजेस, असेट डिक्रीजेस, क्रेडिट. ड्रॉइंग्स इज डिक्रीज इन कैपिटल. ड्रॉइंग्स कैपिटल का अपोजिट होता है. सो ड्रॉइंग्स की वजह से कैपिटल रिड्यूस होता है, तो डिक्रीज इन कैपिटल, डिक्रीज इन लायबिलिटीज, डेबिट. तो एंट्री होगी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट. देन नेक्स्ट आगे, गुड्स कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज. बैंक से कैश निकाले ऑफिस यूज के लिए, कैश इन हैंड इंक्रीजेस, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक बैलेंस डिक्रीजेस, क्रेडिट. सो इंट्रेगी डेबिट होने वाला अकाउंट है कैश, क्रेडिट होने वाला अकाउंट है बैंक, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक. देन ध्यान देना, या settled 10,000 creditors, settle creditors of rupees 10,000, right, at rupees 9,500. हमने हमारे क्रेडिटर को 9,500 में सेटल किया, तो क्रेडिटर्स डिक्रीजेस, सॉरी, क्रेडिटर्स डिक्रीजेस, लायबिलिटी डिक्रीजेस, डेबिट. सो क्रेडिटर्स को डेबिट किया जाएगा, क्रेडिटर्स को डेबिट किया जाएगा, कितना 10,000, कितने से डिक्रीज हो गया 10,000. कैश डिक्रीजेस, असेट डिक्रीजेस, तो कैश को क्रेडिट किया जाएगा, कितना क्रेडिट किया जाएगा 9,500 की कैश डिक्रीज हो गई. एंड यू रिसीव डिस्काउंट, इनकम, इनकम इंक्रीज, क्रेडिट, discount received, income credit 500. So debit is 10,000, credit is also 10,000. तो आप एंट्री लिखते हो creditors account debit 10,000 to cash 9,500 to discount receipt 500. आप यहां से एंट्री कर सकते हो, मैं आपको दिखा रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं कि कितना इंपॉर्टेंस है समझने का, ये कंसेप्ट है. और यही तो है हमारा increase in assets and expenses debit, decrease in assets and expenses credit, right? Increase in liabilities and incomes credit, decrease in liabilities and incomes debit. And next period may try to understand these balances will be brought down, these balances will be brought down. किसी का डाउट है अभी तक? एनीवन इज डाउट? देखो मैं बहुत कंसेप्चुअली सिखाता हूं हर चीज, अगर आप समझ लोगे ना तो लाइफ टाइम समझ में आएगा. एंड एक ही चीज करने के देयर कैन बी मल्टीपल वेज, ये समझ लेना. यू कैन डू द सेम थिंग इन मल्टीपल वेज. सो डेबिट क्रेडिट के रूल जो मैंने राइट सिखा रहा हूं, इतने दिनों से मैं डेबिट क्रेडिट के रूल सिखा रहा हूं. डेबिट मींस, व्हाट इज अ डेबिट? डेबिट इज फॉर असेट्स एंड एक्सपेंसेस इंक्रीज. व्हाट डू यू मीन बाय डेबिट? बट आपको जानबूझ के लोग क्वेश्चन पूछते हैं, आप कॉमर्स के तो डेबिट मतलब क्या, तो उनको व्हाट इज डेबिट? तो योर आंसर इज for assets and expenses, debit is increase, and for liabilities and incomes, debit is decrease. Then what is credit? For liabilities and income, credit is increase, and for assets and expenses, credit is decrease. लिख लेना एंड इसको वीआईएमपी मार्क कर देना. और ये आप
डेली देखते जाओ जब तक आपको क्लिक नहीं होते ये चीज, बिकॉज दिस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड लेजर पोस्टिंग एज वेल एज जर्नल। जर्नल से बनेगा लेजर, लेजर से बनेगा ट्रायल बैलेंस। ठीक है, आगे। यू विल बी हैविंग टेस्ट टुमारो, एक आपकी टेस्ट होगी। यू हैव टू प्रिपेयर जर्नल, लेजर एंड ट्रायल बैलेंस। ठीक है, टेस्ट, देयर विल बी वन क्वेश्चन, राइट? You have to prepare journal, ledger and trial balance. ठीक है, I will share it tomorrow afternoon. ठीक है, of 1 hour। आगे, बट लिखो एटलीस्ट। द प्रॉब्लम विथ यू गाइस, आप घर पे करते हो नहीं करते हो, कभी कभी समझ में नहीं आता। ट्राई टू अंडरस्टैंड। नाउ यू हैव टू पिंग मी द आंसर एवरीवन। कैश अकाउंट विल हैव विच बैलेंस? चैट बॉक्स में आ जाओ आप, जैसे एसएमएस व्हाट्सएप पे जल्दी टाइप करते हो ना वैसे। हाँ, बोलो, मेक इट फास्ट एवरीवन। कैश अकाउंट विल हैव विच बैलेंस? गुड, इधर राइट ओनली डेबिट एंड क्रेडिट, उतना मुझे समझ में। डीआरसीआर, हाँ, ओके गुड। बैंक, बैंक अकाउंट विल हैव विच बैलेंस? बैंक अकाउंट, ओके श्रुति का, bank account may have debit or credit balance, depends, because bank is a person। try to understand, bank is a person, बैंक में, बैंक इज जनरली असेट। ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर बैंक में हमने जितनी कैश डाली है, सपोज, ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्या बोल रहा था, दिस इज माई बैंक अकाउंट, दिस इज बैंक अकाउंट। बैंक में 1 लाख रुपए आए, दिस इज इनफ्लो इन द बैंक। 1 लाख रुपए आए और 80,000 रुपीज हमने विड्रॉ किए, निकाले, बैंक बैलेंस डिक्रीज हुआ है। 1 लाख से इंक्रीज हुआ है, 20,000 से डिक्रीज, 80,000 से डिक्रीज हुआ है, तो यूर बैलेंस इज 20,000 डेबिट। सो दिस इज डेबिट बैलेंस, जिसको बोलते हैं फेवरेबल बैलेंस। डेबिट बैलेंस मतलब ही फेवरेबल बैलेंस, मतलब हमारा पैसा बैंक में पड़ा है 20,000, फेवरेबल, गुड फॉर अस। कभी कभी उल्टा भी हो सकता है, बिकॉज दिस इज विच टाइप ऑफ अकाउंट? करंट अकाउंट। एंड करंट अकाउंट के केस में होता क्या है, यू आर गिवन ए फैसिलिटी ऑफ द ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मतलब क्या? यू कैन विड्रॉ मोर देन व्हाट यू हैव, लाइक दिस बैंक। सपोज यू आर डिपॉजिटेड 1 lakh, but you have withdrawn 1,40,000. Is it possible? Yes, for saving, not for savings, but for the current accounts, business accounts. So 1 lakh you are deposited, 40,000 you have withdrawn. Now the negative balance, this is credit balance. Credit is more. इसको बोला जाता है ओवरड्राफ्ट, ओडी, एज पर कैश बुक। कैश बुक के हिसाब से, कैश बुक या एज पर बैंक अकाउंट, ओवरड्राफ्ट एज पर बैंक अकाउंट, या कोई लोग उसको अनफेवरेबल बैलेंस भी बोलते हैं। मतलब हमें ही बैंक को 40,000 देने, अनफेवरेबल है हमारे लिए। बैंक इस 40,000 पे इंटरेस्ट लगाती है, फ्री में नहीं देती, अनफेवरेबल बैलेंस। ओवरड्राफ्ट पे बैंक इंटरेस्ट लगाती है। तो बैंक अकाउंट may have debit balance or credit balance. Any personal account may have debit or credit balance. If it is asset, if that personal account is asset, debit, it may be liability, credit. So now my next question, लिख लेना, लिख मतलब टाइप करना है आपको। हाँ, मशीनरी अकाउंट विल हैव विच बैलेंस? मशीनरी, मशीनरी अकाउंट विल हैव विच बैलेंस? गुड मानसी, गुड पराग, यस श्रुतिका, it will have debit balance because machineries are assets. Machineries are assets. Then next question, goodwill account will have which balance? Goodwill, goodwill, okay, goodwill is asset, goodwill is asset.
So goodwill will have which balance? Goodwill will have debit balance. Now creditors account will have which balance? Creditors accounts will have which balance? Perfect credit balance. Good. Creditors account will have credit balance. ठीक है. Now we will prepare trial balance. ठीक है. I don't think आपके टेक्स्ट बुक में ट्रायल बैलेंस है. ठीक है. ट्रायल बैलेंस के क्वेश्चंस है. सो मैं देखता हूं कहां पे मुझे ट्रायल बैलेंस के क्वेश्चंस मिलते हैं क्या. ठीक है. लेट मी. आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, पहले होते थे. लेट मी चेक. शायद से मेरे पास भी हो सकता है. ओके. एक सेकंड. जस्ट ए सेकंड. मैं शेयर करता हूं एक शीट मेरे पास है. प्रिपरेशन ऑफ द ट्रायल बैलेंस. ठीक है. एक सेकंड. आई हैव दैट शीट. लास्ट ईयर ना उसके अलग क्वेश्चंस होते थे. इस ईयर के टेक्स्ट बुक में वो अलग क्वेश्चंस नहीं है. ओके. आई विल शेयर द स्क्रीन. 2 मिनट. या आई कैन शेयर द स्क्रीन नाउ. ध्यान देना. या दिस इज द क्वेश्चन. ठीक है. फ्रॉम द फॉलोइंग लेजर बैलेंसेस प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2012 ऑफ उदय सिंह. ठीक है. मैं यहां पे ट्रायल बैलेंस करता हूं. देख लेना सॉल्यूशन. Solution. I will write trial balance, right? In the books of, that is, in the books of Uday Singh, Mr. Uday Singh. Uday Singh. Trial balance as on 31st March 2012. What do you mean by 31st March 2012 का बैलेंस है? मतलब उस दिन पे उन अकाउंट्स में उतने बैलेंस है. ठीक है. सो
लेट्स सी, ध्यान देना एवरीवन. सो आई विल इंसर्ट द टेबल. मैं यहां पे दिखा रहा हूं सो दैट यू विल अंडरस्टैंड. ध्यान देना. आई थिंक इट इज विजिबल. आई एक्सपेक्ट इट इज विजिबल. मैं 4 कॉलम डाल रहा हूं. एक्चुअली आई शुड इंसर्ट सिक्स कॉलम्स. एक एलेप पकड़ के, ठीक है. देखते हैं. सो फर्स्ट कॉलम इज डेबिट अकाउंट. डेबिट अकाउंट. सेकंड कॉलम इज LF is debit balance, rupees. Credit account, then again LF and credit balance. ठीक है, अब ध्यान देना. आगे आपके सामने क्वेश्चन है, हमें आंसर लिखेंगे. अब मुझे बोलो गुडविल का कौन, ये जो गुडविल का बैलेंस है 40,000, गुडविल एज ए 40,000 बैलेंस. चलो करो टाइप. कहां पे रहेगा, डेबिट या क्रेडिट? जल्दी बोलो. चलो सर डेबिट बैलेंस. परफेक्ट. तो डेबिट में लिखूंगा गुडविल. गुडविल डेबिट 40,000. परफेक्ट. गुडविल डेबिट 40,000. आगे गुडविल के नीचे सैलरी. हाँ, सैलरी हैज विच बैलेंस? सैलरी इज एक्सपेंस ना. तो सैलरी हैज विच बैलेंस? डेबिट बैलेंस. हाउ मच? 7,000. गुड. कैरेज इज एक्सपेंस. सो विच बैलेंस? डेबिट बैलेंस. कैरेज इज एक्सपेंस. कैरेज इनवर्ड हो या कैरेज आउटवर्ड हो, कैरेज इनवर्ड हो या कैरेज आउटवर्ड हो, इट्स एन एक्सपेंस. डेबिट में लिखो. आगे एडवर्टाइजमेंट विद डेबिट बैलेंस 4,800. नेक्स्ट. उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस. इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस rupees 1,650. Then next purchases are expenses, debit. आग बंद करके rupees 78,500. Then sales is credit, income. तो क्रेडिट बैलेंस में सेल्स 1,52,500. नेक्स्ट. कैपिटल इज a liability, has to be credit balance. Capital 1,40,000. Then plant and machinery, debit. Plant and machinery is a debit. Plant and machinery. Plant and machinery is a debit balance. कितना था? लेट मी चेक. 60,000. 60,000. उसके बाद है जनरल एक्सपेंसेस. ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूं. फिर उसके बाद है जनरल एक्सपेंसेस कुछ. तो जनरल एक्सपेंसेस 2,200. अगेन एक्सपेंस. जनरल डेबिट 2,200. जनरल एक्सपेंसेस. हाँ, उसके बाद क्या है जनरल एक्सपेंस के बाद? ट्रेड एक्सपेंसेस 3,000. ओपनिंग स्टॉक 27,000. 3,000 and 27,000. Try to understand. Trade expenses are expenses debit 3,000. Stock is asset and assets have debit balance. So opening stock, opening हो, ठीक है, 30,000. उसके बाद नहीं 27,000. ओपनिंग स्टॉक इज 27,000. ध्यान देना. आगे ऐसे क्वेश्चंस आते थे पहले 5 मार्क के. डेटर्स 31,500. डेटर्स इज असेट 31,500. डेटर्स 31,500. ठीक है. उसके बाद डेटर्स के बाद क्रेडिटर्स 66,000. ये तो लायबिलिटी है 66,000. आगे
Land and building is asset 70,000. Land and building is asset. $70,000. Overdraft is a liability. Bank OD is a liability. We have to pay to bank 35,000 because हमने उनसे ज्यादा निकाले थे पैसे. Like a loan. It's overdraft is like loan. आगे. Next. आगे. Patents. Patents is asset. Intangible asset. Patent is asset 20,000. Rent should be expense 9,000. Patent 20,000 का asset रहेगा. $20,000. Patent, goodwill, trademark, copyrights are assets. Rent has to be expense. कुछ लिखा नहीं, वो expense रहेगा. Debit 9,000. आगे. उसके बाद फर्नीचर 20,000 का asset. Debit. Printing and stationery 10,200. Expense. क्या क्या था? Furniture 20,000 and printing and stationery 10,200. Furniture 20,000. Printing and stationery 10,200. Next. आगे. Discount debit वाला debit पे, that is discount allowed, and discount credit वाला credit पे. Discount credit वाला लिख देता हूँ. Discount that is received. Discount received is 3,650. Discount debit वाला 2,300. 2,300. Debit वाला मतलब discount allowed. I don't know कितने का था. 2,300. And then there's a cash in hand 4,500. ठीक है. फिर आपको क्या करना है? ये आपने लिख दिया बैलेंसेस. फिर आपको क्या करना है? आपको इनकी टोटल लेनी है. डेबिट टोटल शुड बी इक्वल टू क्रेडिट टोटल. नहीं तो आपका रॉन्ग है. होगा, डोंट वरी, होना ही चाहिए. अगर आपने बराबर बैलेंस लिखे तो डेबिट बैलेंस शुड बी इक्वल टू क्रेडिट बैलेंस. ठीक है. आगे देखो. सो टेक द टोटल ऑफ डेबिट. मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ. 40,000 प्लस 7,000, 47,000 प्लस 5,500, 52,500 प्लस 4,800. एक सेकंड. 40 प्लस 7 प्लस 5,500 प्लस 4,800 प्लस 1,650, 78,500, 60,000. पहले क्रेडिट की टोटल लेने को थोड़ा जल्दी हो जाती है. 3,000, 27,000, 31,500, 70,000 प्लस 20 प्लस 9. मैं अभी कैलकुलेटर पे कर रहा हूँ. 10,200 प्लस 2,300 प्लस 4,500. मैं एक दिखा रहा हूँ आपको. पहले ऐसे टेक्स्ट बुक में होते थे क्वेश्चंस. तो यहाँ पे आएगा टोटल. टोटल आएगी 3,97,150. क्रेडिट की टोटल देखो उतनी होनी चाहिए. 1,52,500, 1,40,000 प्लस 66,000 प्लस 33,000, 35,000 प्लस 3,650. 3,97,350 आ रहा है मेरा. यस, 3,97,150. फिर क्या करना है आपको? बैलेंस लेना है. नथिंग एल्स. बैलेंस ले लो और यहाँ पे लिखो टोटल. बस दैट्स इट. सच क्वेश्चंस आर आस्क्ड फॉर 5 मार्क्स. ऐसे क्वेश्चंस 5 मार्क के लिए पूछते हैं. क्या डिफिकल्ट है? कुछ नहीं. ठीक है. देन डिस्काउंट अलाउड इज 2,000. अच्छा, वो गलती से हुआ है. ये लेते टाइम 2,300 ही है. हाँ, आगे. अब ध्यान देना, लिख लेना नीचे बैलेंसेस. एवरीवन बैलेंसेस. कोई अकाउंट के बैलेंसेस लिख लेना. ऑल
रिजर्व अकाउंट्स, ऑल रिजर्व अकाउंट्स लिख लेना, हैव, लिखो, all reserve accounts have, all reserve accounts all reserve accounts have credit balances. All reserve accounts have credit balances. ये important points like general reserve, it is a profit basically. General reserve. Oh, screen नहीं share हुई मेरे. Let me share again. एक second. दिख रहा है क्या? Is it visible now? Check करो. Is it visible? Yeah, लिख लेना. All reserve accounts have credit balance like general reserve, capital reserve, workmen compensation reserve, workmen compensation reserve. ठीक है? Then all provision accounts have, provisions are expected liabilities. All provision accounts have credit balances. Example, provision for doubtful debts. Doubtful debts. Doubtful, इसका मतलब क्या है वो लास्ट चैप्टर में आएगा, बट फॉर योर इंफॉर्मेशन, जिसको लोग आरडीडी या आरबीडीडी बोलते, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ऐसे अलग नाम है. ठीक है? अनदर एग्जांपल, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स. ये वर्ड्स आप आज में भी आपको अलग लगेंगे, बट जैसे आप लास्ट चैप्टर करोगे फाइनल अकाउंट्स, यू विल बिकम फैमिलियर विद दिस वर्ड्स एंड ये आपका एंड तक पीछा नहीं छोड़ेंगे, आखिरी दम तक एक वर्ड्स आपके साथ चलेंगे. प्रोविजंस फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स. सो आई वांट डिस्कस दिस थिंग्स कि इसका मतलब एग्जैक्टली क्या होते हैं. दिए जाता प्रोविजंस ऑन डेटर्स. पीडीडी लोग बोलते हैं, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, पीडीडी. देन प्रोविजन फॉर टैक्स, provision for tax. Example, provision for taxation. ठीक है? एक्सेप्शन, एक ही एक्सेप्शन है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, प्रोविजन और रिजर्व for discount on creditors. Have debit balance. प्रोविजन और रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स छोड़ के बाकी कोई भी रिजर्व अकाउंट हो,
कोई भी प्रोविजन अकाउंट हो उसको क्रेडिट बैलेंस रहता है, एक ही है, ठीक है। देन आगे ए पर्सनल अकाउंट may show debit or credit balance. May show debit or credit balance, ठीक है। Then depends whether debtor or creditor, ठीक है। Then now come to this question number 2 देखो, कैपिटल क्रेडिट बैलेंस, डेटर्स और ड्राइंग्स डेबिट, ओपनिंग स्टॉक, या एक लिख लेना, 2-3 चीजें लिख लेना। और हाँ, कैपिटल शोज डेबिट क्रेडिट बैलेंस, therefore so drawings will show debit balance, उल्टा होता है, राइट। Similarly, purchases show debit balance, therefore उसका अपोजिट जो रहेगा, purchase returns shows credit balance. Sales account shows credit balance, income होता है, and therefore so sales return will show debit balance, उल्टा, ये अपोजिट्स है, ठीक है। ये पता है आपको, अब ध्यान देना, बैलेंस अगर पता है ना तो भी आप एंट्री बराबर लिख सकते हैं। पता है क्या होता है बैलेंस? कैपिटल क्रेडिट, ड्राइंग्स डेबिट, ओपनिंग स्टॉक डेबिट, एनी रिसीवेबल बिल्स रिसीवेबल डेबिट, सैलरीज डेबिट, डेटर्स डेबिट, क्रेडिटर्स क्रेडिट, परचेसेस डेबिट, सेल्स क्रेडिट, परचेस रिटर्न क्रेडिट, सेल्स रिटर्न डेबिट। कैरेज इनवर्ड हो या आउटवर्ड हो, व्हेन यू परचेस द गुड्स यू पे द कैरेज एक्सपेंस, व्हेन यू सेल द गुड्स आप फ्री में डिलीवरी करते हो, उसको फ्री में देते हो, यू इंकर द एक्सपेंस, आप उससे कोई लेते नहीं, कैरेज आउटवर्ड एक्सपेंस। सो इनवर्ड हो या आउटवर्ड हो, लिख लेना, कैरेज इनवर्ड, कैरेज फ्रेट, राइट, इनवर्ड हो या आउटवर्ड हो इज एक्सपेंस, इनवर्ड और आउटवर्ड इज एक्सपेंस। Therefore डेबिट बैलेंस, कैरेज हो या फ्रेट हो, इनवर्ड हो या आउटवर्ड हो, इट इज अ डेबिट बैलेंस, इट इज एन एक्सपेंस, ठीक है। मैं कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख के दे रहा हूं जहां पे कंफ्यूजन हो सकता है। आगे कैरेज या फ्रेट इनवर्ड हो या आउटवर्ड हो, इट्स एन एक्सपेंस, देयरफॉर डेबिट बैलेंस। आगे फर्नीचर असेट डेबिट, रेंट एंड टैक्सेस असेट डेबिट, वेजेस एक्सपेंस डेबिट, इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट, डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम क्रेडिट, पोस्टेज expenses debit, cash in hand asset debit, machinery asset debit, printing and stationery expense debit. Now हाँ, मैं किसी को अनम्यूट करता हूं, ठीक है, मैं किसी को अनम्यूट करूंगा, यू हैव टू टेल मी द आंसर, ठीक है। जैसे क्या बोलना है, नेम, टेक द नेम ऑफ द अकाउंट, देन से whether it is asset liability income expense and then debit or credit, ठीक है। चलो कौन लेगा ये क्वेश्चन सॉल्व करेगा, चलो रेज द हैंड, अगर खुद होके कोई कर रहा है तो अच्छी बात है, अदरवाइज मुझे किसी को अनम्यूट करना होगा। ओके मानसी मैडम, चलो गुड, ये तेरे सामने क्वेश्चन है, ठीक है, वर्टिकल जाना है। स्टॉक अकाउंट डेबिट बैलेंस, हाँ नीचे नीचे बोलते चल, तू खुद होके बोलते चल, बराबर है। हाँ परचेसेस अकाउंट डेबिट बैलेंस, सेल्स अकाउंट क्रेडिट बैलेंस, रिटर्न इनवर्ड इनवर्ड ना, डेबिट बैलेंस, अंदर आ मतलब वो सेल्स रिटर्न रहेगा, बराबर ना। डेबिट बैलेंस,
carriage debit balance, motive power. अच्छा, मोटिव पावर इज, होता क्या है, आप लोगों ने वो एक्सटेंशन देखे क्या, जो लोग गांव में रहते हैं या ऐसे बड़े बड़े लाइट के एक्सटेंशन जाते हैं, बड़े बड़े पिलर्स रहते हैं, देखो मोटिव पावर मतलब क्या, इंडस्ट्री में जो लाइट जाती है ना, लाइट सप्लाई होता है, राइट, उसको बोलते हैं मोटिव पावर, इलेक्ट्रिसिटी इन सिंपल वर्ड्स, हमारे लिए इलेक्ट्रिसिटी। बट जो बड़े इंडस्ट्री जाते हैं ना, उन पे एक बड़ी बड़ी लाइन खींची जाती है, ऐसा रेक्टेंगल ट्रायंगल टाइप होता है, राइट, ऐसे बड़े बड़े दिख, मैं आपको बोलता हूँ, आपने ऐसे देखा होगा, ऐसे जगह जगह पे ऐसे लगे होते हैं और ऐसे वायर जाते हैं, देखो, या देखा है कहाँ पे आपने, रोड्स पे, राइट, ये जो वायर जाते हैं ना, बड़े बड़े वायर जाते हैं, देखो आपने, नॉर्मल वायर नहीं, तो इन ये जो इलेक्ट्रिसिटी होती है ना, उसको मोटिव पावर बोलते हैं। सो इट इज इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एंड दैट इज यूज्ड नॉट फॉर द डोमेस्टिक पर्पस, इट इज यूज्ड इन द इंडस्ट्रियल एरियाज। सो मोटिव पावर इज एक्सपेंस, इट इज इलेक्ट्रिसिटी इन सिंपल वर्ड्स। डेबिट बैलेंस, हाँ मैडम बोलो। Wages account balance, plant and machinery debit balance, हम्म bills payable credit balance, हम्म trade expense debit balance, debtors debit balance, creditors credit balance, salaries debit balance, insurance debit balance, postage account debit balance, commission paid debit balance, commission received credit balance, cash in hand debit balance, furniture account debit balance, advertisement account debit balance, office rent debit balance, drawings account debit, goodwill account debit, bank loan credit balance, building debit balance, capital credit balance. गुड, परफेक्ट, गुड, परफेक्ट। सो ठीक है, सो अगर कहाँ पे डाउट आता है, एक आधी जगह पे डाउट हो सकता है, ऐसे कुछ नहीं, ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक आधी जगह पे डाउट हो सकता है, ठीक है, एक आधा रहेगा, लाइक यहाँ पे मोटिव पावर पता नहीं था, मोटिव पावर इज एक्सपेंस, सिंपल वर्ड्स में इंडस्ट्रियल एरिया में जो पावर यूज होती है उसको मोटिव पावर बोलते हैं, ठीक है, आगे। अच्छा, कोई और दूसरा, एनीवन एल्स, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, कौन, एनीवन एल्स, रेज द हैंड, मैं हूं ना आपको मैं बोल दूंगा। आज सेजल नहीं है शायद से, हाँ? सेजल मैडम नहीं है आज। हम्म, अच्छा, एक मिनट, लेट मी चेक। चलो दूसरा कोई एक आधा खुद, ओके। चल पराग बोल रहे हैं। हम्म Goodwill account debit balance, हम्म carriage account debit balance, debtors account debit balance, हम्म trade expenses account debit balance, हम्म capital account credit balance, हम्म creditors account credit balance, हम्म sales account credit balance, discount account debit balance, कौन सा डिस्काउंट है, अलाउड रिसीव्ड, discount कौन सा रहेगा वो, 1000 allowed, अलाउड, हाँ, एक्सपेंस, हाँ। हम्म machinery account debit balance, journal expenses account debit balance, advertisement account debit balance, furniture account debit balance, purchases account debit balance, land and building account debit balance, commission account debit balance, उसी का, cash in एक मिनट, कमीशन रिसीव्ड रहेगी या कमीशन पेड रहेगी, commission paid, परफेक्ट, हाँ। हम्म cash in hand debit balance, हम्म patents account debit balance, electricity and lighting account debit balance, या bank loan account credit balance, wages account debit balance, opening stock debit balance, purchases printing and stationery account debit balance, interest on loan account on bank हाँ, इंटरेस्ट ऑन लोन इज एन एक्सपेंस, ex- debit balance, loan account credit balance, bills pay एक्चुअली एक ही वर्ड है वो, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, इंटरेस्ट, bills payable credit balance बिल्स पेएबल, क्रेडिट बैलेंस, credit balance. गुड। सो एक सेकंड, परफेक्ट। सो क्लिक हो रहा है या नहीं हो रहा है अभी? सो अब ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों को, एवरीवन। सो ये क्यों समझना इंपॉर्टेंट है बोलूं क्या, कभी कभी एंट्री नहीं समझ में आती है,
सर क्या इस अकाउंट को डेबिट करो या क्रेडिट करो, नहीं क्लिक होता है। तो आप वो देख के है ना, राइट, आप देख के समझ सकते हो। लाइक गुडविल डेबिट होता है तो गुडविल को डेबिट करो, कैरेज डेबिट होता है तो कैरेज को डेबिट करो। आप वैसे खुद को एंट्री भी समझ सकते हो। एक ही चीज समझने के ना अलग अलग तरीके होते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। सो अच्छा, देखो यहाँ पे आरडीडी अकाउंट है, यू कैन सी आरडीडी इज अ रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, इट इज क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। कोई दूसरा अकाउंट है तो लेट मी चेक, दिस इज बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट, इट इज अ लायबिलिटी, क्रेडिट बैलेंस होगा, ठीक है। देन कुछ अलग दिखता है तो मैं बोलूंगा आपको, ये आरडीडी है, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, क्रेडिट बैलेंस। देन आई नो कि बच्चे कहाँ पे गलतियां करते हैं। दिस इज जनरल इंश्योरेंस, इंश्योरेंस फॉर टू टाइप्स, फायर इंश्योरेंस, मराइन इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस, ये जनरल इंश्योरेंस आ गया, बाइक का इंश्योरेंस वगैरह वो जनरल आ गया, और लाइफ इंश्योरेंस इज ड्रॉइंग। सो एक्सपेंस है, ये डेबिट बैलेंस है, ठीक है। इसमें आई थिंक कुछ नहीं है। यहाँ पे ट्रेड रॉयल्टी है, रॉयल्टी इज एन एक्सपेंस, रॉयल्टी इज एक्सपेंस, डेबिट। You have to pay royalty. Like example, you use the name of someone else, so you have to pay the royalty. Royalty is an expense. What is coal, gas, and water? Acha, coal, gas, and water is used by the manufacturing industry. Heat generate करने के लिए use होते हैं, so it is an expense. Heat generate करने के लिए use होता है, it is an expense. Coal, water, gas, etc. are expenses. ठीक है? Then कहाँ पे तो रहेगा, I don't know कहाँ पे था. Coal, gas, and water. हाँ, यहाँ पे कोल, गैस एंड वाटर इज एक्सपेंस, ठीक है। देन ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, दिस इज लास्ट क्वेश्चन दैट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना एवरीवन। क्या लिखा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन सेज, मैं आपके सामने क्वेश्चन रख रहा हूं, एन इनएक्सपीरियंस्ड अकाउंटेंट हैज प्रिपेयर्ड द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस, राइट, एज यू आर एक्सपर्ट इन द अकाउंटेंसी it is expected, find out, right, find out the errors ढूंढने आपको। मैंने आपके सामने ट्रायल बैलेंस रखा है, ठीक है, दिस इज ट्रायल बैलेंस इन योर फ्रंट। कुछ तो गलतियां है ट्रायल बैलेंस में, आपको मुझे पिंग करना है क्या गलती है। मतलब मे बी उनका क्या हुआ होगा, डेबिट बैलेंस गलती से क्रेडिट में लिखा होगा, क्रेडिट बैलेंस डेबिट में लिखा होगा, कुछ तो ऐसी गलतियां रहेगी। वैल्यू मत देखना, बैलेंस बराबर जगह पे लिखा है क्या वो देखो, ऑब्जर्व करो। ओके, हाँ बराबर बोल रहे, गुड। ओके, ओके, गुड। या गुडविल में क्या गलत, गुडविल शायद करेक्ट है, गुडविल में कोई इशू नहीं है। अच्छा, बिल्स पेएबल, ओके, गुड। अब मैं बोलता हूँ, ध्यान देना, आई विल हाईलाइट द थिंग जो रॉन्ग है। ओपनिंग स्टॉक डेबिट बैलेंस होना चाहिए, डेबिट है, कोई इशू नहीं। परचेस डेबिट होना चाहिए, डेबिट है। सेल्स क्रेडिट होना चाहिए, क्रेडिट है। मशीनरी डेबिट होना चाहिए, मशीनरी गलती से उन्होंने कहाँ पे लिखा है, दे हैव रिटर्न ऑन क्रेडिट, सो दिस शुड बी ऑन डेबिट साइड, ये गलत है। दिस शुड बी ऑन विच साइड, डेबिट साइड, दिस इज द फर्स्ट। गुडविल डेबिट होना चाहिए, गुडविल शुड बी डेबिट, और डेबिट है। वेजेस एक्सपेंस होते हैं तो वो डेबिट होने चाहिए, उन्होंने क्रेडिट पे लिखा है, सो दे हैव रिटर्न ऑन रॉन्ग साइड, ठीक है, दिस इज सेकंड एरर। थर्ड एरर, कमीशन रिसीव्ड इनकम होती है, रिसीव्ड है ना तो इनकम होती है, तो क्रेडिट होनी चाहिए, उन्होंने डेबिट पे लिखा है, सो दिस इज उनकी थर्ड एरर, हमें अभी तक नहीं।
ठीक है, आगे देन डेटर्स डेबिट होने चाहिए, क्रेडिटर्स क्रेडिट होने चाहिए, कोई इशू नहीं। बिल्स पेएबल लाइबिलिटी है, एनी पेएबल इज अ लाइबिलिटी, क्रेडिट होना चाहिए। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ है, उन्होंने डेबिट पे लिखा है, तो बिल्स पेएबल का बैलेंस उन्होंने गलत जगह पे लिखा है, गलत कॉलम में लिखा है, ठीक है। पोस्टेज एंड टेलीग्राम एक्सपेंसेस होते हैं, डेबिट होना चाहिए। इंटरेस्ट रिसीव्ड है, रिसीव्ड इज इनकम, अगर इनकम है तो क्रेडिट पे होना चाहिए, उन्होंने डेबिट पे लिखा है, सो दिस इज देयर अनदर एरर, ठीक है, दिस इज देयर अनदर एरर। उसके बाद कैपिटल करेक्ट है, क्रेडिट होना चाहिए। डिस्कमीशन अलाउड, अलाउड मतलब गिवन, एक्सपेंस होता है, वो डेबिट पे होना चाहिए। एंड देयरफॉर, अब ध्यान देना, मैं कैलकुलेटर पे या मैं आपके यहाँ पे कैलकुलेटर निकालता हूँ, ध्यान देना, तो आपको क्लिक होगा। अब हम डेबिट टोटल और क्रेडिट टोटल करेक्ट देखेंगे कितनी है। आपके सामने कैलकुलेटर है, ध्यान देना, हो रहा है ओपन। मैं डेबिट की टोटल लेता हूं, सबसे पहले 10,000, उसके बाद 40,000, उसके बाद डेबिट टोटल वो मशीनरी डेबिट पे आनी चाहिए 50,000 वाली, फिर गुडविल 50,000 बराबर है, 200 डेबिट पे आना चाहिए वेजेस का, उसके बाद वो कमीशन रिसीव क्रेडिट पे जानी चाहिए, वो डेबिट की नहीं है, क्रेडिट की टोटल क्रेडिट में जाना चाहिए, तो उसको 500 को लेना मत। डेटर्स 40,000 होनी चाहिए, डेटर्स 40,000 होनी चाहिए, फिर बिल्स पेबल नहीं होना चाहिए, वो साइड में जाना चाहिए, क्रेडिट पे जाना चाहिए। पोस्टेज 500 ले लो, इंटरेस्ट क्रेडिट पे होना चाहिए, एंड डिस्काउंट अलाउड डेबिट पे होना चाहिए प्लस 500। So correct debit total is 1,91,200. Correct debit total is 1,91,200. Correct debit total is 1,92,000. क्रेडिट की टोटल देखते हैं आप, उतनी होनी चाहिए, ठीक है। लेट्स सी क्रेडिट की टोटल, पहले 50,000 का कुछ तो सेल्स है, उसके बाद वो मशीनरी नहीं होना चाहिए, वेजेस भी नहीं होना चाहिए, कमीशन रिसीव 500 की होनी चाहिए, ओके। 20,500 होना चाहिए, आगे वो बिल्स पेबल होना चाहिए 50,000, इंटरेस्ट होना चाहिए 200, एंड 70,000 होना चाहिए, 500 नहीं होना चाहिए, 1,91,200। सो इन्होंने टोटल बराबर ली है, ये टोटल बराबर ली है, बट प्रॉब्लम क्या हुआ है पता है, देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे एक डेबिट है 500, यहाँ पे एक क्रेडिट है 500, गलत है, लेकिन टोटल में वो 500 500 दिख रहा है, बट वो गलत है। एक्चुअली ये 500 डेबिट पे होना चाहिए था, और ये वाला ऊपर वाला 500 क्रेडिट पे होना चाहिए था। 200 की भी टोटल कैसे की, देखो ये 200 और ये 200, दोनों साइड पे 200 200 है, टोटल में बराबर आ रहा है, बट एक्चुअली ये जो 200 है ना वेजेस वाला, वो डेबिट पे होना चाहिए, एंड डिस्काउंट रिसीव कर 200 है ना, वो क्रेडिट पे होना चाहिए। ये 50,000 50,000 क्या हुआ है, ये 50,000 मशीनरी का डेबिट पे होना चाहिए, एंड बिल्स पेबल का 50,000 क्रेडिट पे होना चाहिए। सो क्या हुआ है कि आपके राइट डेबिट टोटल क्रेडिट टोटल बराबर है, बट अंदर जो लिखा है ना आपने, वो गलत लिखा है टू सम एक्सटेंट। ये समझा है नहीं समझा, आगे आई विल शेयर दिस शीट विद यू, आई विल शेयर दिस शीट विद यू, ठीक है। यू हैव टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंसेस, you have to prepare trial balances and you have to share the answer with me। बच्चे आंसर शेयर नहीं करते, मैं कितने क्वेश्चन है ये, 27 क्वेश्चन है, सो योर टाइम इज टिल टुमारो इवनिंग, आपको इनके बैलेंसेस लिखने हैं। अगर आप प्रिंट आउट लेते हो तो भी चलेगा, बट बेसिकली क्या करो, मैं क्या बोल रहा हूँ, सिंपल रखो, राइट, फॉर्मेट ड्रॉ करके रखो स्पीड में, एंड फिर क्वेश्चन 1 स्पीड में लिखो। यूज कैलकुलेटर टोटल के लिए मुझे इशू नहीं है, कैलकुलेटर यूज करो, बट एटलीस्ट आई वांट टू बी एक्सपर्ट इन डेबिट एंड क्रेडिट, कौन सा डेबिट होता है कौन सा क्रेडिट होता है, ठीक है। आगे, और जो नहीं आएगा यू कैन आस्क मी ऑन मंडे या ट्यूसडे एज द केस मे, आई विल शेयर दिस शीट विद यू। उसमें से कोई क्वेश्चन हमने किए हैं, बट आपको खुद होके करने हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। इफ यू डोंट पुट एफर्ट्स टुडे यू विल लूज टुमारो, ये मेरा वर्ड है, याद रखना। सो यू हैव टू पुट एफर्ट्स, देयर इज नो अदर ऑप्शन, ठीक है। और आपको ऐसे फॉर्मेट में करना है, ठीक है, डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस।
आगे। अच्छा कितने हुए? 940। सो आज मैं बोलूंगा आपको कौन सा चैप्टर हमारा हुआ। एक सेकंड। वी आर डन विथ, ध्यान देना, आई विल कम टू द इंडेक्स। We are done with these many chapters. Introduction, meaning and fundamentals of double entry system, journal and ledger. हमारे 4 चैप्टर्स हुए। नाउ फ्रॉम द नेक्स्ट वीक, पूरा वीक लगेगा हमें, वी विल स्टार्ट विथ सब्सिडरी बुक्स। वी विल स्टार्ट विथ सब्सिडरी बुक्स, ठीक है। सो इट विल टेक मैक्सिमम 2 वीक्स। सो यू कैन से कि हम दिसंबर एंड तक हमारा सब्सिडरी बुक्स हो जाएगा, एंड देन these chapters, ठीक है। दिस पार्ट इज अकाउंटेंसी, एंड इसके पहले का पार्ट बुक कीपिंग है, वो मैं सबसे लास्ट वाले चैप्टर में बोलूंगा। योर सब्जेक्ट इज बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, ठीक है। सो दिसंबर एंड में हम बुक कीपिंग खत्म करेंगे, एंड जनवरी से वी विल स्टार्ट विथ राइट अकाउंटेंसी पार्ट। किसी के डाउट्स है? डोंट मिस द लेक्चर्स। इफ यू आर मिसिंग द लेक्चर्स, आई डोंट नो क्यों आप लेक्चर्स, कोई बच्चे नहीं दिखते मुझे, ठीक है। आई डोंट नो व्हाई, बट डोंट मिस द लेक्चर्स, ठीक है। चलो, थैंक यू। आई विल शेयर द शीट इन सम टाइम। टुमारो यू हैव वन टेस्ट, जर्नल, लेजर, ठीक है, इन तक till trial balance. You have to finalize the trial balance, and this is the homework. Thank you.